some manipulation of each and every pixel based on some criteria, based on some thumb rule that I have defined, or based on the values of the neighboring pixels. uh, we are going to modify each and every pixel of the image so that you are also so that we achieve some desirable result, which may be like sharpening of the image, blurring of the image, enhancement of the image, or maybe some correction in the image that we are looking for. Okay, so the operation will be done on the pixels, and the operations will be, means we will call that these operations are in a spatial domain. Okay, so the image domain, so two domains in which we can work. One is a spatial domain technique, so we operate directly on the pixels of an image. And in transform domain, we operate on the transform coefficients. So as we know that image will be mathematically represented as a two-dimension matrix, 2D matrix, and we know how to find a coefficient for discrete values that we have studied in signal system and the DSP. So this is a two-dimensional discrete value, and you can find the Fourier transform. The simplest or the most popular is the uh, DFT, discrete Fourier transform. So you have already done it for one dimension. So the same concept or same technique will be extended to two-dimension data. Hmm. And there are certain advantages when you operate in transform domain, and we are aware of that. Yeah. So whatever the similar kind of advantages we'll have when we operate on an image in transform domain. Okay, so intensity transformations. So the two major categories of spatial processing. One is intensity transformation and other is a spatial filtering. So in intensity transformation, the operation on single pixel of the image is done, and this is done to achieve some outcome like a contrast manipulation or image thresholding. Then in intensity transformation, based on some rule, you are going to transform the intensity, or we are going to modify the intensity of each pixel. So that is a one way. Other way is a spatial filtering. So what happens in this? So in this we operate on a group of neighboring pixels. So what you do, uh, whatever, so there is a pixel under consideration. So we are going to change the value of that particular pixel according to some set of rule which is uh, based on or which incorporates the values of the neighboring pixels. तो उसके आसपास के पिक्सल्स किस तरह के हैं, उसकी वैल्यू क्या है. और सबसे सिंपल सा मान लो कि एवरेज फिल्टर हमने लिया. तो मान लीजिए कि एवरेज फिल्टर हमने लिया, तो हमने क्या किया, एक हम बोलते हैं कि भाई एक हमने मास्क 3x3 का, ठीक है ना, लिया है. इसको हम 3x3 का एक मास्क बोल सकते हैं, ठीक है. ये हमने लिया है, या कर्नेल बोलते हैं, आगे भी देखिएगा. Now there is a pixel under observation or under consideration, that is at the location xy. So if what I do, I just change the value of this pixel by taking average of all neighboring pixels. मतलब ये क्या होगा, and including this pixel value. So total 9 pixels I consider. I take the average of the 9 pixel values, and I replace the pixel value of this central pixel with the average value. So if I just start the operation from here and go from left to right, and I just do it for all the pixels of this image,
and so what will happen that all the pixel value will be changed with the average value, ठीक है ना। और यहाँ पे बाउंड्री पे क्या होगा, बाउंड्री पे तो भाई बाहर कोई में वो है नहीं, पिक्सल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितनी हमारी जरूरत हो, जैसे यहाँ पे 3x3 है तो 2 और पिक्सल की जरूरत, जैसे सबसे पहला पिक्सल देखिए तो 2 आपको लेफ्ट में चाहिए होगा, नहीं सॉरी, एक लेफ्ट में चाहिए होगा, एक ऊपर चाहिए होगा, ये 2 तो चाहिए ही होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पैडिंग कर सकते हैं, जो भी इमेज है उसकी हम क्या कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे उसके बाउंड्री पे हम पैडिंग कर सकते हैं, या तो हम 0 पिक्सल पिक्सल ऐड कर देंगे, उसकी वैल्यू 0 रख देंगे, या फिर एप्लीकेशन के हिसाब से हम कुछ और रख सकते हैं। सो द पैडिंग इज द अनदर ऑप्शन टू ऑपरेट ऑन द बाउंड्री पिक्सल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्या है कि कोई सा भी लोकेशन है एक्स वाई, वहां पे जो पिक्सल वैल्यू है वो एफ एक्स वाई है, उसको हमने चेंज कर दिया, हमने एक ट्रांसफॉर्म उसका ट्रांसफॉर्मेशन लिया, या कोई सेट रूल हमने किया, और वी हैव चेंज दैट वैल्यू टू जी एक्स वाई। Okay, so basic intensity transformation functions. So what happens, the value of pixels before the processing, suppose value of particular pixel is r, after processing that is s, so it can be represented in the form of a function where s equal to some function of r, means r is the input or r is the pixel value initially which is changed to s, right. So typically process starts at the top left of the input image and proceeds pixel by pixel in horizontal scan one row at a time. So any operation that you do, you start from here, then you just go horizontally, and then you just come to second row, then again start from here. So this is how you proceed. So you start from the top here, here you start the operation on this pixel, and the last pixel that you work with is this one. So this is a conventional procedure to work with the pixels. Then in either ignore outside neighbors or pad the image with a border of zeros or some other specified intensity values. So this I have already explained. Now see the how intensity transformation can be done. So suppose, so what you observe is a क्या है ये, अब जैसे ये जो देखो, ये पहला जो फंक्शन है, सो दैट इज फॉर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग मतलब क्या हो रहा है कि देखो, ये k की वैल्यू, सॉरी, ये जो देखो आप x एक्सिस पे जो जो भी पिक्सल की वैल्यू होगी, सपोज आप ग्रे स्केल मान के चलो, तो 0 to 255 होगा। तो क्या हो रहा है, ये मान लो ये वैल्यू कहीं पे क्या है, ये मान लो कि ये है 50 वैल्यू, लेकिन आउटपुट पे 0 ही आएगा, मतलब इसका जो आउटपुट पे मैपिंग होगा वैल्यू से, वो 0 से ही हो रहा है, ठीक है। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से देखो, ये मान लो ये आर, ये मान लो ये 200, ये जो है वैल्यू, ये मान लो ये 225 है, ये भी किससे रिप्रेजेंट होगा, मैक्सिमम वैल्यू से, 255 से। So this value, maximum value, that's fine, it will be represented by the maximum value. So what is happening, we are just stretching, means the intensity values which are at a lower side, उसको हम और लोअर कर दें, उसको हम 0 के पास धकेल दे रहे हैं, ठीक है। और जो मान लो 200 से जाता है, उसको हम और मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। So this is how, if you just see an image where this kind of transformation is done, so क्या देखोगे कि कुछ सारे, मतलब एक जो है कॉन्ट्रास्ट आपको उसका इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने 0 साइड को कुछ को ढकेल दिया और कुछ को हमने हायर साइड की तरफ ढकेल दिया। अच्छा, मेरी इच्छा ये हुई कि हमको, हमारे पास एक ग्रे स्केल इमेज है और उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें। तो हमने क्या किया है कि इंटेंसिटी लेवल डिफाइन कर लिया के, मान लो सपोज मैंने के डिफाइन कर लिया 2, मतलब सबसे अगर कॉमन सेंस की बात करें तो हमारे पास अगर ग्रे स्केल इमेज है
जिसकी वैल्यू जो है इंटेंसिटी वैल्यू 0 to 255 है। तो मेरा जो कॉमन सेंस, अब मुझे क्या करना है कि वैल्यू के डिसाइड करना है, थ्रेशोल्ड, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने के डिसाइड किया, बिल्कुल मिडिल पॉइंट टू टू मतलब 128 में डिसाइड कर लूंगा। और 128 से जो कम की वैल्यू रहेगी, पिक्सल वैल्यू जिसकी 128 से कम रहेगी, उसको मैं 0 मैप कर दूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया। और इससे ज्यादा जो होगा उसको मैं मैक्सिमम वैल्यू 255 मैप कर दूंगा। सो इस तरह से we can transform a grayscale image into a binary image by using some threshold k, ठीक है। so this is called a thresholding। अब जैसे आपको एक निगेटिव इमेज चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एक इमेज, निगेटिव इमेज, तो मान लीजिए क्या है कि आपके पास एक ग्रे स्केल इमेज है, ये देखो एक ओरिजिनल इमेज है, ये क्या है, मेमोग्राम है एक। अब इसमें जो पिक्सल वैल्यू होगी सो 0 से 255 होगी। मुझे इसका एक निगेटिव चाहिए, ठीक है। निगेटिव क्या होता है, कभी कभी आपको निगेटिव चाहिए क्योंकि निगेटिव में हो सकता है कि जो, अब जैसे ये इमेज है तो हो सकता है कि डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, ये जो है व्हाइट लिएजन, ये जो है हमको, अगर हम इसका निगेटिव देखें तो वहां पे मोर प्रोमिनेंट दिख सकता है या दिखेगा। तो अगर हमको किसी एक इमेज का निगेटिव इमेज चाहिए, सपोज मैं ग्रे स्केल इमेज का एग्जांपल लूं, तो मान लीजिए कि एक एक हम क्या करें, जैसे पिक्सल वैल्यू मान लो 100 है, ठीक है ना, तो उसको मैं चेंज कैसे करूंगा, उसको मैं 255 माइनस 100 करूंगा एंड आई विल मॉडिफाई दैट टू 155। 255 माइनस 100, यहाँ पे देखो यही हो रहा है। एल जो है टू 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 द पावर ग्रे स्केल इमेज है, तो एल की वैल्यू, एल जो होगा वो मैक्सिमम 2 टू द पावर 8 व्हिच इज 256 माइनस 1 255 माइनस आर की वैल्यू हमने 100 ली है, तो 255 माइनस 100 तो हो गया एस की वैल्यू 155। इसी तरह से मान लीजिए आर की वैल्यू 0 है तो एस की वैल्यू 255 हो गया, ठीक है। आर की वैल्यू 255 है, एस की वैल्यू 0 हो गया। तो हम क्या करें, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो है, ठीक है, वो लेंगे एंड देन व्हाट विल हैपन, इफ यू जस्ट ड्रॉ द, if you plot the image it will be the negative image of the original image। अच्छा, अब क्या है, और कौन कौन से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, एक तो होता है लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्म, ये जो पहले हमने काम किया उसी तरह के ऑपरेशन से यहाँ से हो सकते हैं। तो एक जनरल लॉग ट्रांसफॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, s इक्वल टू सी लॉग 1 प्लस आर। आर इज द पिक्सल वैल्यू, ठीक है, सी इज सम कांस्टेंट, ठीक है, एंड आर इज ग्रेटर देन 0। पिक्सल वैल्यू हमने एक बार डिसाइड कर लिया अपने हिसाब से, क्योंकि हमें ऑपरेशन करना है, तो हमने डिसाइड कर लिया एक जो है ये इंटीजर ही होगा, ठीक है। अब क्या होगा, transformation maps a narrow range of low intensity values in the input into a wide range of output levels। Opposite is true for high values of input levels। ये क्या है, ये भी मैं आगे समझाता हूँ। सेकेंड क्या है, expand, so if you do the logarithmic transform so it expands the values of the dark pixels in an image while compressing the higher level values, so it compresses the dynamic range of the image with larger variation in the, it compresses the dynamic range of the images with larger variations in the pixel values। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जांपल है फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो भी समझ में नहीं आएगा आगे जो एक चैप्टर होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड होगा, वहां पे समझेंगे। लेकिन जो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्म है वो देखिए उससे ऑपरेशन कैसा होगा, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसा रहा है, वो इस तरह से हो रहा है। अगर देखिए बिल्कुल क्या है कि ये देखो ये क्या है, अगर अगर लॉग लॉग आप ले रहे हो, ठीक है ना, तो आपको जो कर्व्स मिल रहे हैं वो इस तरह के मिल रहे हैं, इस तरह के कर्व मिल रहे हैं। और ये किस चीज पे डिपेंड कर रहे होंगे, एक मिनट देखें, हाँ
तो लॉग आप लोगे, सी की वैल्यू क्या है कि आपको कुछ ना कुछ लेना होगा. So you can just take some constant value of c and then you take the log. So the curve is like this. ठीक है ना, कर्व ऐसे है. nth रूट लोगे तो कर्व इस तरह से. Just a minute. और nth पावर अगर लोगे, ठीक है, तो कर्व इस तरह का होगा. इनवर्स लॉग लोगे, मतलब फंक्शन अगर आप इनवर्स लॉग लोगे तो कर्व इस तरह का होगा. अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर पिक्सल वैल्यूज, जो कि एक इमेज के पिक्सल वैल्यूज अलग अलग हैं, उसको मैं इस तरह से पर्टिकुलर टाइप से अगर ट्रांसफॉर्म करूंगा तो इमेज पे क्या इम्पैक्ट आता होगा. अब जैसे आप ये लॉग देख रहे हो, लॉग ये देख रहे हो, तो क्या हो रहा है कि जैसे आप जीरो से आओ L/4 पे आओ. जीरो से जब तक L/4 की वैल्यू जो है कहाँ किस रेंज में मैप हो जा रही है, लगभग ये देखो यहाँ पे जीरो से 3L/4 पे जाके मैप हो जा रही है. यानी कि एक जो लोअर वैल्यू रेंज है 0 to L/4 ओरिजिनल इमेज में, वो आउटपुट इमेज में जो पिक्सल वैल्यू जो आ रही है उसकी, उसके करस्पॉन्डिंग वो एक वाइड रेंज में आ रही है. वो कहां से आ रही है, 0 से लेके 3L/4 तक चली जा रही है. ठीक है, यानी कि लोअर साइड में जो वैल्यूज है पिक्सल वैल्यूज, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बढ़ा दे रहे हैं. तो एक बात तो पक्का है भाई कि अगर ऐसा करोगे कि मान लो वैल्यू है ये, मान लो L/4, यानी कि मान लो ये वैल्यू है L, मान लो मैं 200 ही ले लेता हूँ, ये वैल्यू है 50. ठीक है ना. तो जब हमने ये लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्म लगा दिया तो वो वैल्यू हो गया 150. ठीक है ना. तो पिक्सल वैल्यू 50, इंटेंसिटी लेवल 50 था, और अब हमने क्या कर दिया, जब हमने ये ट्रांसफॉर्म लगा दिया लॉग वाला. ठीक है, ढेर सारे ट्रांसफॉर्म्स लगे हुए हैं. ठीक है ना. अभी हम लॉग वाला पढ़ रहे हैं. लॉग वाला ये हो गया, देखो इनवर्स वाले का ग्राफ ये है, आइडेंटिटी वाला बीच वाला है. ठीक है ना. nth रूट का ये है, nth पावर का ये है, इनवर्स लॉग का ये है. तो इतने सारे ट्रांसफॉर्म्स हैं. ठीक है ना. और उसमें क्या क्या एक्टिविटी, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म, पिक्सल वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही होगी, वो आप विजुलाइज कर सकते हो. और आप ये कोरिलेट कर सकते हो कि इमेज पे क्या इंपैक्ट हो रहा होगा. तो जैसे ही इमेज में मान लो कि ये वैल्यू है 0, जीरो को तो जीरो ही है, 10 जो है, मान लो 10 अगर वैल्यू ये है, और ये भी मैप हो गया कहाँ जाके, ये कहीं पे L/4, ये मान लीजिए ये जो है 10 है, ये भी कहीं पे जाके मान लीजिए ये भी कहीं पे 30-40 पे मैप हो गया. तो वैल्यू 10 थी, अब उसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्म होकर कितनी मिल रही है, 30-40 कुछ इस तरह से मिल रही है. यू कैन कैलकुलेट इट. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग दैट, एक तो इमेज का क्या होगा, ब्राइटनेस जो है वो इंप्रूव होगा, ये पक्का है. ठीक है. और जो देखो, जो जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी वो थोड़ा सा उसको कम कर दे रहे हैं. ठीक है ना. ये भी हो रहा है. जैसे ये 3/4 पे यहाँ पे है, देखो ये देखिए, ये 150 जो पिक्सल वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है, हाँ उसकी वैल्यू जो है कुछ नहीं, कम तो नहीं कर रहे हैं. अगर ये ले लें हम, अगर ये ले लें, ये वैल्यू अगर लें, ठीक है, और ये मान लीजिए ये वैल्यू है आपकी करीब 150 मान लें अगर, या 200 मान लें, तो ये कहाँ पे जा रहा है. अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ये यहाँ पे आता कहीं पे 200, ये भी ज्यादा हो जा रहा है. ठीक है. तो लॉग में क्या हो रहा है कि लॉग में व्हाट इज हैपनिंग, जरा सोच के बताओ, somebody has to comment. अगर एक लॉग ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इमेज पे, ग्रे स्केल इमेज पे, तो इमेज में क्या चेंज हो रहा है, जरा हमको बताइए सोच के. ठीक है, somebody has to tell.
सोचो तब तक हम भी सोचें। सर मतलब जिस इंटेंसिटी से, मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो जिस मैग्नीट्यूड से वो इंक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है ना सर, तो मतलब हाँ ये जो है फिर से बताओ क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। हेलो हेलो, एक बार रिपीट करना। अरे एक बार रिपीट तो करो फिर से। सॉरी सर, वो नेटवर्क दिक्कत हो गई थी, सॉरी सर। हाँ ठीक, एक बार रिपीट करो फिर से। मतलब सर जैसे जैसे इनपुट इंटेंसिटी इंक्रीज करता है तो जिस मैग्नीट्यूड से हमारा आउटपुट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। हाँ ठीक इफ है, इट हाँ मेक्स ठीक सेंस। है, ठीक है। तो एक तो देख रहे हो कि शुरू में हमने जो लो वैल्यू वाले थे उनको हमने काफी वैल्यू उसका बढ़ा दिया, तो एक तो जो है ओवरऑल उसका ब्राइटनेस बढ़ेगा इमेज का। अब ये सब करके देखोगे, करके देखिए ऑपरेशन सिंपल से, सो यू विल हैव अ मच बेटर फीलिंग और मच बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे बढ़िए। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म देखिए बहुत लफड़े का है, इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, तब देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए, अब एक दूसरा, जैसे कि पिछला ग्राफ था उसमें आपने देखा था कि हम एक्सपोनेंशियल या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो r है तो रूट r या फिर रूट r टू द पावर समथिंग n, ठीक है ना। इस तरह के भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। तो एक देखो जनरलाइज जो है पावर लॉ है, उसको बोलते हैं गामा ट्रांसफॉर्मेशन। गामा ट्रांसफॉर्मेशन, अब वो क्या है, S इक्वल टू सी R रेज टू द पावर गामा। सो गामा इज द पावर where C and gamma are positive contents, पॉजिटिव है दोनों, ठीक है ना। Transformation maps a narrow range of dark input values into wide range of output values। अच्छा ये बात क्या है कि इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, पढ़ के दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, जिस समय पढ़ता हूँ उस समय समझ में आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन का पिक्टोरियल व्यू देखो, उसके बाद उसको आप अप्लाई करके देखो, तो आपको जो है सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। तो इसमें फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देख लो कि गामा की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और गामा की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में ले लोगे तो उसका क्या हो जाएगा, एक उसका वो एक बिल्कुल अपोजिट इम्पैक्ट देगा। जैसे गामा की वैल्यू मैं 1 रख लूं और गामा की वैल्यू 1/2 रख लूं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, वो दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और एक अपोजिट इम्पैक्ट या इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सो अपोजिट इज ट्रू फॉर गामा ग्रेटर देन 1, ठीक है। फैमिली ऑफ, अभी अभी फिगर देख के देख लेते हैं। अब ये फिगर ही देखें, इसमें क्या करना है। अब इसमें देखो, अभी फिगर देखते हैं पहले, ये देखिए गामा है। अब गामा की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, आप देख लो गामा की वैल्यू, ठीक है ना। आप अगर गामा की वैल्यू 1 लोगे तो क्या है कि एक लीनियर ऑपरेशन हो रहा है, जो भी मतलब आइडेंटिटी ऑपरेशन, जो भी पिक्सल वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जितना इनपुट पे है वही वही पिक्सल वैल्यू है, आपने कोई चेंज नहीं किया है। और आप फ्रैक्शन में लोगे तो देखो इस तरह से चेंज होगा, फ्रैक्शन कम करते जाओगे ये देखो ऐसे होता जाएगा, ठीक है ना। अगर अब आप कल्पना करो, या फिर क्या करना है, ये सारे जो है, ठीक है ना, ये देखो असाइनमेंट है तुम्हारा, असाइनमेंट नोट करो। तो इसमें क्या करना है, एक एक को छोड़ के एक इमेज लेना है, अपना इमेज लेना है। जो भी ऑपरेशन करना है आपको, जो भी असाइनमेंट मिलेगा, आप उसमें क्या होगा, जो भी आप इमेज लोगे, जो भी सीन रहेगा उसमें आपका फोटो जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जैसे 1 तो रहने दो, 1 पे तो कोई मतलब ही नहीं है। आप ये गामा इक्वल टू आप ये ले लो, 0.4 ले लो, 0.1 ले लो, एक एक छोड़ के ले लो, ठीक है। तो एक ये ले लो 0.1, एक 0.4 ले लो, ठीक है। उसके बाद इधर एक अपोजिट ले लो आप, ठीक है ना।
यहाँ पे भी एक एक छोड़ के ले लो, गामा की वैल्यू 2.5 ले लो, गामा की वैल्यू 10 ले लो। तो ये 5 6 7 इमेज, यार आपकी इच्छा और करने की, ये सारे इमेज को क्या करना है, प्लॉट करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गामा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके लाना है अगले 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 लैब में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स लेना है, उसके उस पे जो है आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है गामा की अलग अलग, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल, गामा की वैल्यू चेंज करनी है, इमेज रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, और फिर आपको उस पर कमेंट करना है। ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये हो गया पावर लॉ, हो गया पावर लॉ या गामा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और इसमें क्या है कि आपको ढेर सारी फ्लेक्सिबिलिटी है गामा की अलग अलग वैल्यू के लिए, इस ढेर सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप जो है आराम से प्लॉट कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है गामा करेक्शन। अब गामा करेक्शन यहाँ पे तो लिखा हुआ है क्या, कि फॉर डिस्प्लेइंग एन इमेज एक्यूरेटली ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन या किसी और स्क्रीन पे इमेज को करेक्टली प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसमें कोई प्री प्रोसेसिंग मेथड लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं गामा करेक्शन। और ये प्री प्रोसेसिंग मेथड क्यों लगाना पड़ता है उसके बारे में भी बात करते हैं। और लेकिन आप गामा करेक्शन अगर यूज करते हो तो किस तरह के इमेज को आप हैंडल कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। जैसे कि कोई इमेज है, इफ इट इज टू डार्क और इफ इट इज अ washed out image, so if you apply some gamma correction, you can you can improve the you can enhance the quality of the image। अब देखिए जैसे गामा करेक्शन क्या होता है, a variety of devices used for image capture, printing and display respond according to a power law। ठीक है, the process used to correct these power law response phenomena is called gamma correction। अब इसमें कुछ लोग तो होंगे जो काम करते हैं, डिजाइन वगैरह का काम करते हैं। ठीक है ना, अब ये बात क्या है, मुझे कोई समझाएगा क्या, ये गामा क्या है, ये गामा करेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है, कोई समझाएगा मुझे। एनीवन? अच्छा, अच्छा, आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई सा भी इमेज है, ठीक है ना, आप मोबाइल पे देखते हो, ठीक है ना, वही आप कंप्यूटर पे देखते हो, तो आपको दोनों के सेट्स या मतलब आपको लगता है कि ये दोनों तो चेंज है, इसमें कुछ आपने मतलब कुछ इसके सेट्स वगैरह में चेंजेस है। ठीक है, ऐसा किसी ने ऑब्जर्व किया आप में से किसी ने? नहीं ऑब्जर्व किया? हाँ, ऐसा मतलब हमने तो किया है। ठीक है ना, तो आप देखोगे, आप करके देखना कि कोई सा भी आप पिक्चर अपना ही देख लो या कोई सा भी सीन आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखो, उसके बाद आप अपने लैपटॉप पे देखो या डेस्कटॉप पे देखो, आपको उसमें कुछ ना कुछ मतलब उसके सेट्स में कुछ ना कुछ आपको चेंज दिखेंगे। ठीक है, वो ऐसा इसलिए है कि हर एक डिवाइस का जो है ना, जब वो उसका जो भी इनपुट इमेज है और वो जो डिस्प्ले पे डाल रहा है ना, तो हर एक डिवाइस का जो डिस्प्ले सिस्टम है ना, उसका क्या है, एक गामा रिस्पॉन्स है। वो क्या करेगा, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द डिस्प्ले सिस्टम। ठीक है, और उसके कारण क्या होगा कि एक ओरिजिनल इमेज आपको, अब आप ओरिजिनल किसके कहोगे, तो हमको आप ही की तरह एक बालक था, कुछ डिजाइन कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि भाई देखिए आपका जो मोबाइल फोन पे इमेज है ये जो है ओरिजिनल है, और डेस्कटॉप पे दिख रहा है ये है मॉडिफाइड। ठीक है, और शायद इसलिए अब पता नहीं ये ऐसा, लेकिन हाँ ये मुझे उसने बताया था, बिकॉज ही वाज अ प्रोफेशनल डिजाइनर। ठीक है, तो तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सा डिवाइस जो है डिस्प्ले डिवाइस, उसमें गामा जो है वो क्या करेगा, कुछ हमें आउटपुट चेंज करके देगा बाय, और वो गामा गामा बाय मतलब एक जो है ये पावर लॉ
इक्वेशन फॉलो करते हुए गामा की उसकी कुछ वैल्यू होगी और हमारा आउटपुट जो है पिक्सल वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होके तब हमको डिस्प्ले पे मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक हमको क्या करना पड़ेगा, उसका काउंटर मेजर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और वो जो गामा से मॉडिफाई हुआ है, गामा फंक्शन मतलब पावर लॉ फंक्शन से मॉडिफाई हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इनवर्स फंक्शन हमको डेवलप करके और उसको हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज या काउंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए उसी को बोलते हैं गामा करेक्शन। जैसे देखिए सीआरटी डिवाइस हैव an intensity to voltage response that is a power function of gamma equal to देखिए 1.8 to 2.5। तो हो सकता है आप अगर किसी डिवाइस का, किसी डिस्प्ले डिवाइस का अगर स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक गामा की वैल्यू भी होगी। सो डिफरेंट मॉनिटर सेटिंग रिक्वायर डिफरेंट गामा करेक्शन वैल्यूज, ठीक है। Current image standards do not contain the value of gamma with which an image was created, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है हमको क्या करना पड़ेगा, एक इसका काउंटर मेजर लेना पड़ेगा। और आप ये देखिए जैसे कि एक इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, और ये ओरिजिनल इमेज व्यू किया गया एक कंप्यूटर मॉनिटर पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। और तब हमने क्या किया कि गामा करेक्शन यूज किया। तो ये देखिए गामा करेक्टेड इमेज, मतलब हमें पता था कि भाई डिस्प्ले जो है उसका गामा की वैल्यू क्या है, तो हमने एक गामा करेक्शन यूज किया। गामा करेक्शन देखिए ऐसे यूज होता है, आर रेज टू द पावर समथिंग, अगर मान लीजिए 2.5 है, ठीक है, तो आर रेज टू द पावर 1/2.5 ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उसको करेक्ट कर देगा। तो गामा करेक्टेड इमेज ये है, जो पहले से हमने उतना चेंज कर दिया उसमें, ठीक है, पहले से एक फ्रैक्शन से कर दिया, बाद में यहाँ पे वही फ्रैक्शन जो है फिर 2.5 से मल्टीप्लाई होके हमको जो है ये ओरिजिनल इमेज मिल जाएगा यहाँ पे गामा करेक्टेड। सो अब ये देखो कि ये दिस अपीयर्स ऑलमोस्ट सेम एज अ ओरिजिनल इमेज। अब इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, ये आप देख सकते हो। कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट, अब यहाँ पे देखो जैसे हम इसको थोड़ा ब्राइटर साइड में इमेज को ले जाए, तो ये देखो जैसे फ्रैक्चर बोन है, ये थोड़ा सा अगर लाइट हो गया अगर इमेज, तो ये यहाँ पे इजिली विजिबल हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिटन प्रॉपरली ऑन द स्लाइड, यू कैन जस्ट गो थ्रू। यहाँ पे देखो वॉश्ड अवे इमेज है, वॉश्ड आउट इमेज है, इसको भी आप जो है इनहेंस कर सकते हो। आप गामा की देखो क्या वैल्यू लेके कर सकते हो। अब इसको पढ़ो और खुद ही सोचो कि भैया देखो गामा के अलग अलग वैल्यू के लिए देखो चेंज हो गया ये, ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा एग्जाम में, ठीक है, ये देखिए और सोचिए कि गामा की किस वैल्यू के लिए इमेज पे क्या इफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल, यू थिंक, ऑब्जर्व, डू द हैंड्स ऑन, कन्विंस योरसेल्फ, ठीक है, ओके। अब क्या है कि बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग है, बेटर वी सी द इमेज। अब जैसे मान लीजिए कि हमने क्या सोचा कि भैया ये जो है देखो यहाँ तक का जो है इसको क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे ही रखना है। सो नीचे वाले जो वैल्यू है, मतलब लोअर साइड में इस पॉइंट तक जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, आउटपुट पे उसकी वैल्यू थोड़ा दबा ही दिए। उसका देखो ये जो बीच है ये पॉइंट R1 S1 और R2 S2 इसको हमने बढ़ा दिया बहुत तेजी से, है। अरे यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इस दोनों वैल्यू के बीच में है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसका ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो वो मैंने बढ़ा दिया। फिर बाकी जो है उसको फिर से और मैंने नीचे कर दिया। तो ये जो अगर इस तरह का काम मैं करा, पीस वाइज हम काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का ही काम कर रहे हैं। तो आप देखो कि कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ये पहला इमेज है, देखो ये है फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज, ये दूसरा जो है ये लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है। तीसरा देखो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का है, और चौथा क्या है, कोई थ्रेशोल्डिंग करके हमने उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही कन्वर्ट कर दिया। तब ये देखो कमाल का, देखो बढ़िया सा, देखो ये जो है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, अगर हमने ये पीस वाइज अगर इक्वेशन लगा के किया है, लीनियर इक्वेशन, तो हमने देखो इस तरह से अचीव कर लिया। और ये कॉन्ट्रास्ट इस तरह के फंक्शन लगाने के लिए, इस तरह का ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या है कि ये आपकी समझदारी पे जो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ये डिपेंड करेगा,
तो image processing is a application kind of thing, and so there are various kind of outputs that you require, you desire, and there are various techniques there that you can apply, which will depend upon the type of image, type of the scene that you are going to handle or that you are handling. अब हम देखिए हमको इस तरह का चाहिए, अब ये सारे डिटेल लिखे हुए हैं, ये करने से इस तरह का स्ट्रेचिंग कर दोगे तो आपको क्या फायदा होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन हियर, ठीक है। अब देखो एक होता है बिट प्लेन स्लाइसिंग, ठीक है। अब बिट प्लेन स्लाइसिंग क्या होता है? द इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल इन 256 लेवल ग्रे स्केल इमेज इज कंपोज्ड ऑफ 8 बिट, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आप क्या कर रहे हो कि 8 बिट आपने क्या किया है, एक ग्रे स्केल इमेज है आपके पास, 256 लेवल्स हैं और आपने क्या किया, 8 बिट यूज किया है उनको कोड करने के लिए, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जैसे आपको एक मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है ना, इमेज में क्या होगा, एक आपको मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें पिक्सल वैल्यूज होंगे और हर एक पिक्सल वैल्यू जो है वो क्या है, 8 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने क्या किया कि अलग अलग बिट प्लेन निकाल लिया, यानी कि एक आपने मैट्रिक्स निकाला जिसमें सारे जो है 8th बिट वाले जो मैक्सिमम मैक्सिमम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसके बाद 7th बिट का एक प्लेन बन जाएगा, 6th बिट का एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है ना, और एलएसबी का एक प्लेन बन जाएगा। इस तरह आपने क्या किया कि 8 बिट जो है, each pixel value intensity value is represented by a code of binary code of 8 bits, और आपने क्या किया, हर एक बिट को क्या किया, एक एक प्लेन में, यानी कि फर्स्ट प्लेन जो है 8 बिट प्लेन, ये क्या कर रहा है, 8th बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ऑल द पिक्सल वैल्यूज इट इज कंटेनिंग। दूसरा है 7th, तीसरा है 6th बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट वाला है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस सारे प्लेन को अगर मैं इमेज के फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट कर लूं, मान लो कि एमएसबी है, एमएस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो 8th पे क्या हो गया, 1 हो गया, बाकी बिट पे क्या होगा, हम 0 ले सकते हैं। तो ये क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, 2 to the power 7, कितना हो गया, 128, ठीक है ना। तो अगर क्या है कि अगर 1 अवेलेबल है 8th बिट पे, तो वो जो है वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करेगा, 128, और नहीं है तो कोई बात नहीं, तो 0 ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर देखिए कि ये सारे प्लेन का अगर मैं इमेज में क्या करूं, अगर कन्वर्ट करूं, तो देखो एक क्या है, पहला n 8 बिट ग्रे स्केल इमेज, साइज भी दिया हुआ है। बी क्या है, अब ये बिट प्लेन्स है 1 to 8 तक का है, ठीक है ना, ये उल्टा चल रहा है। ये देखो पहला बिट प्लेन का है, ठीक है ना, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का है, ये दूसरे बिट, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का देखो स्ट्रेंथ क्या होता है, उसमें कोई चौथे पांचवें में कुछ कुछ दिखा, ये छठे का है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, ये 7वें बिट का है, ये 8वें बिट का है, बिट थ्रू प्लेन 1 through 8 with least significant which each bit is a binary image, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब ये देखो, ये जो इमेज है, अब ये ऐसा नहीं है कि 8वां बिट 8th बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी यूज कर रहे हैं तो ये इमेज आ रहा है, जो कि ओरिजिनल इमेज से काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, इमेज रिकंस्ट्रक्ट, अब हम इमेज रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है 7th बिट और 8th बिट का प्लेन को ऐड कर दे रहे हैं, तो हमको ये इमेज मिल रहा है। फिर 7th और 8th बिट और 6th बिट को ऐड कर दे रहे हैं, उसके 3 प्लेन को ऐड कर रहे हैं, तो ये मिल रहा है इमेज। और फिर हम अगर 8th 7th 6th और 5th को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये प्लेन मिल रहा है, ये इमेज मिल रहा है। और हम सारे को फिर से ऐड कर देंगे तो हमें ओरिजिनल मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ सो इमेज रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग बिट प्लेन्स,
ये भी हो सकता है कभी कभी हमें जरूरत पड़े तो हम ये काम भी कर लेंगे। जैसे देखो ग्रे स्केल बॉर्डर है इंटेंसिटी ऑफ ये, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड, इफ नॉट इट इज ऑलरेडी रिटन प्रॉपरली। उसके बाद अगला आता है कि हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है स्पेशल इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग, और इट इज आल्सो नोन एज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। हो सकता है कुछ लोगों, आप लोग इमेज प्रोसेसिंग वगैरह का काम कर रहे होंगे, कुछ तो कर ही रहे हैं, मुझे पता है, हमारे साथ भी कर रहे हैं। सो दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस। सो दिस इज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और अगला क्लास होगा कल, और ये चैप्टर मुझे खत्म करना है इस वीक में। रात को पढ़ा सकते हैं क्या किसी दिन? या फिर ये भाई सीआर, ये जो इंटर्नशिप पे है उनकी अगर कुछ समस्या होगी तो बताना। ये तो मैं पहले ही पूछ लिया था, उनको क्लास की जरूरत होती नहीं है। अगर वो कहेंगे कि अरे सर जो है दिक्कत हो रही है, आप रात को शाम को पढ़ाइए, एक्स्ट्रा पढ़ाइए, मुझे कम से कम थोड़ी सी खुशी होगी कि भाई उनको लेक्चर की जरूरत है हमारी, ठीक है। अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो ये कहाँ तक जा रहा है स्लाइड? तो बहुत ज्यादा है। शार्पनिंग कर देंगे, कर देंगे। अरे हाँ ठीक है। तो ये चैप्टर देखो खत्म करना है मुझे, ठीक है। थर्ड चैप्टर मुझे खत्म करना है, कल पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो किसी दिन सैटरडे संडे में पढ़ा डालेंगे। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ पूछना है? सो आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग माय स्क्रीन। सो अटेंडेंस, ये भाई ये देखो, मतलब ऑनलाइन है फिर भी जो है 56 ही जुड़े हैं, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं है। कॉपी, अटेंडेंस मैंने ले लिया। किसी को कुछ कहना है, बताना है, पूछना है? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? चलो ठीक है। सो दिस क्लास इज कंक्लूडेड। थैंक यू वेरी मच।